So good to see you online today, and we are so excited to lead you in worship. I'm Joash and this is Hepzibah, and it is an honor to catch you online, especially during this season. We pray that God will be with you and your family, keep you safe, protected, and even as we lead you in worship, may I request you to feel free to join in and sing along if you know this song. And let's sing the name that is high above all other names. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You were the Word in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. One beautiful name.
name above every other name. Jesus, the only one who could have saved. Worthy of every breath we could have breathed. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart.
firm foundation. The seas alone, we will not be shaken. We will stand on your word. सब कुछ है। धन्यवाद।
pray for our nation India and Israel. आइए हम अपने भारत देश और इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। Dear Lord, thank you for India and our government. प्रिय प्रभु, हम आपको भारत और हमारी सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं। We ask for peace and comfort for all the families and friends who lost their loved one due to COVID-19. हम COVID-19 के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों और दोस्तों की शांति और आराम के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for the recovery of the world economy. हम विश्व अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए प्रार्थना करते हैं। We ask for special blessing and protection over our health and safety workers during this time. हम इस दौरान अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों के विशेष आशीष और उनकी सुरक्षता के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for peace and prosperity of Israel and rest of the world. हम इज़राइल और बाकी दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इन योर नेम वी प्रे, आमेन। आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। Good morning, friends. सुप्रभात दोस्तों, Warm welcome to all listening to my message today. और आप सभी का स्वागत है जो मेरे संदेश को आज इस सुबह सुन रहे हैं। May God speak to you परमेश्वर आपसे बातें करे and bless you. और आपको आशीषित करे। The topic for my message today is spiritual journey. और मेरा आज का संदेश है आत्मिक सफर या आत्मिक यात्रा। What is spiritual journey? और आत्मिक यात्रा क्या है? It is your journey towards heaven, और ये आपकी यात्रा है स्वर्ग की ओर। a journey of fulfillment और ऐसी यात्रा जो आप पूरा करोगे of God's purposes in your life. परमेश्वर के लक्ष्य को आपके जीवन में। Life is a journey. और जीवन जो है एक यात्रा है, It has a start उसका एक शुरुआत है and an end. और एक अंत। Now life is made of two life journeys. और जीवन जो है उसमें जो है दो प्रकार की यात्रा होते हैं। One life journey is your physical life journey, और एक ऐसी यात्रा जो आपकी शारीरिक यात्रा है and it starts with और उसकी शुरुआत होती है your physical birth हमारे जन्म से and ends with death. और समाप्त होती है मृत्यु से। In between और बीच में is your childhood, हमारा बचपन है, your youth, हमारी जवानी है, you finish your studies, हमारी पढ़ाई लिखाई हम समाप्त करते हैं, you get married, हमारा विवाह होता है, you have children, बच्चे होते हैं, and if you live further, और अगर हम और जीते हैं you get older, हम बूढ़े होते हैं, and finally you die. और अंत में हमारी मृत्यु होती है। Animals have just one life journey, और जानवरों को केवल एक ही सफर या यात्रा होती है, which is physical life journey. और वो उनकी शारीरिक यात्रा है। But human beings लेकिन मनुष्य जो है have one more life journey उनकी और एक जो है यात्रा होती है called spiritual life journey. जो कि आत्मिक यात्रा। So my message is today और मेरा for human beings मेरा आज का संदेश है मनुष्य या इंसान के ऊपर, who have a spiritual journey to go. और जिनके पास एक आत्मिक यात्रा होती है करने की। And today और आज I want to highlight मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 essentials of spiritual journey. 7 आवश्यक बातें जो आत्मिक यात्रा के लिए जरूरी है। You can easily remember them आप इसको आसानी से याद रख सकते हो because I have mapped these 7 essentials क्योंकि इन 7 आवश्यक बातों को जो है मैंने जोड़ा with, है with 7 letters of word journey. और ये जो जर्नी यानी यात्रा में जो शब्द हैं उनके साथ मैंने जोड़ा है इसको। JOURNEY. और ये मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगी JOURNEY। So the first thing that you need और जो पहली बात जो जरूरी है for a spiritual journey हमारी आत्मिक यात्रा के लिए is J for Jesus. और फिर वो जे दर्शाता है यीशु को। This is the most important और ये
सबसे बड़ी बात है या महत्वपूर्ण बात है, part of the spiritual journey, और हमारे जो आत्मिक जीवन में, because it is the start of the journey. क्योंकि ये हमारे यात्रा की शुरुआत है। If the journey has to end in heaven, और अगर हमारी यात्रा को स्वर्ग में समाप्त होना है, it has to start with Jesus. तो उसकी शुरुआत यीशु से होनी है। Also, this is the most important part of the spiritual journey, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है या भाग है हमारी इस आत्मिक जीवन की या यात्रा की, because you cannot end without a start. क्योंकि हमारी समाप्ति तभी होगी जब हमारी शुरुआत होगी। Jesus is the author and finisher of our और faith. यीशु मसीह जो है हमारे विश्वास का लेखक और अंत करने वाला लेखक है। So, praying is important, प्रार्थना करना जरूरी है, and learning about his standards and principles और उसके स्तर और सिद्धांतों के बारे में सीखना from the Word of God becomes essential. तो उसके वचन से, परमेश्वर के वचन से ये बहुत जरूरी होता है। Always focusing on him, और हमेशा हमारा ध्यान जो है उनके ऊपर, like Jesus focused on the Father, और जिस प्रकार से यीशु मसीह जो है उसका ध्यान पिता पर होता था, and said और उसने कहा he could do nothing without him. कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। Heaven connects through only one network, और स्वर्ग से केवल हम एक ही नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, and that network is Jesus through Holy Spirit. और वो नेटवर्क जो है, वो जरिया जो है, वो यीशु मसीह है पवित्र आत्मा के द्वारा। We see in the scriptures that Jesus said in John, और हम वचन में देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के किताब में अध्याय में कहा, chapter 3 verse 5, और तीसरा अध्याय 5वां वचन, that unless one is born again, कि जब तक तुम्हारा जो है जन्म पूर्ण एक बार फिर जन्म नहीं होगा, one cannot see the kingdom of heaven. तो हम जो है स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। In Ephesians chapter 2 verse 5, it says और एफिसियों का दूसरा अध्याय 5वें वचन में ऐसा कहा है that we were dead in our trespasses, कि हम जो है अपने पाप में मरे हुए थे, but by God's love and great mercy, लेकिन परमेश्वर के प्रेम और उनकी अधिक कृपा के कारण He made us alive in Christ तो Jesus. उन्होंने हमें जीवित किया यीशु मसीह में। Your physical body is already living, और हमारा शारीरिक जीवन जो है वो जीवित है, but when Jesus comes in your life, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है your spirit gets activated तो हमारी जो आत्मा जो है वो कार्य में आ जाती है, and gets connected to God और फिर वो जुड़ जाती है परमेश्वर के साथ, and gets connected to God और वो परमेश्वर से जुड़ जाती है, and heavenly resources. और जो भी स्वर्ग के जो रिसोर्सेज है उनसे, जो चीजें हैं उनसे जुड़ जाती है। This is just like और ये इसी प्रकार से है when a mobile is switched on, जब हम एक मोबाइल को जो है चालू करते हैं, ऑन करते हैं, it latches to the network of the SIM card. तो जो सिम कार्ड पर जो नेटवर्क होता है उससे जुड़ जाता है, Because you accepted Jesus, और क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है you get connected to the heavenlies, तो हम जो है स्वर्गीय चीजों से जुड़ जाते हैं, and your spiritual journey starts. और हमारा जो आत्मिक यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। Now, good part is और अच्छी बात ये है that God is already on your कि side परमेश्वर जो है हमारे बाजू में है, हमारे बगल में है। the moment you start this journey, जिस क्षण हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं and your journey starts. और हमारी जो यात्रा की शुरुआत हो जाती है, This is like God saying about Jesus और ये इस प्रकार से है जैसे परमेश्वर यीशु के बारे में कह रहा है that this is my beloved Son, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। And he said this और उन्होंने ऐसा कहा even before he started his ministry. उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले ही, And he said this और उन्होंने ऐसा कहा
even before he started his ministry. उसकी सेवकाई शुरू करने से पहले, God is already pleased और परमेश्वर हमसे संतुष्ट है, खुश है। if you have already started जब हमने शुरुआत की है your spiritual journey with him. इस आत्मिक जीवन की उसके साथ। The second thing that you need for your spiritual journey और दूसरी बात जिसकी हमें आवश्यकता है इस आत्मिक जीवन में, is that you need to know कि हमें जानना है that for others are important कि दूसरों की हमें जरूरत है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, and that it is our journey. और ये हमारी यात्रा है। It is not just me और ये केवल मैं नहीं हूँ, but impacting others लेकिन दूसरों पर प्रभाव डालना and touching lives as much as possible. और दूसरों के जीवन को छूना बहुत अधिक रूप से। We are important first in God's sight. हम परमेश्वर के नजर में पहले महत्वपूर्ण है, That's why Jesus died for us. और इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरे। We see in Philippians chapter 2 verse 4 और फिलिपियन की किताब 2 उसमें 4 वचन में हम देखते हैं, let each one of you look not only for his own interests और केवल जो है हमें जो है अपने बारे में ही नहीं सोचना है या हमारी जरूरतों के बारे में, but also in the interests of others. लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना है। In a house, a wall is more important than a brick. और एक घर में जैसे एक दीवार जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है एक ईंट से। But every brick is important in the house if the house has to be beautiful and strong. लेकिन हर एक ईंट जो है महत्वपूर्ण होता है अगर उस घर को सुंदर दिखना है तो। If I remove one brick from a house, और अगर मैं एक ईंट को निकालूंगा घर से, it will impact the beauty somewhere if not the strength. और वो कहीं ना कहीं मेरे घर की सुंदरता को असर करेगी। हो सकता है हाँ उसकी शक्ति को असर न करे, ताकत को उस घर की। Some bricks are under you, lifting you up. और कुछ ईंटें ऐसी हैं आपके नीचे जो आपको ऊपर उठा रही हैं, While you with some others और आप कुछ और के साथ, and those under you और जो आपके नीचे हैं, are bearing the burden of bricks above and stuffs above. और फिर जो है आप उस ईंटों का जो वजन है ऊपर ले आ रहे हैं। Maybe you are not seen or visible, हो सकता है आप दिखाई नहीं पड़ते, but praise God, someone is lifted up लेकिन प्रभु की स्तुति हो, कोई ना कोई ऊपर उठा है because of you. आपके कारण। Now the third thing that you need for your spiritual journey is you yourself. और तीसरी बात जिसकी आपको आवश्यकता है इस आत्मिक यात्रा में, वो आप खुद हो, स्वयं। You are very important for your spiritual journey. तो आप जो है बहुत महत्वपूर्ण हो आपकी इस आत्मिक यात्रा में। Jeremiah chapter 29 verse 11 says, और यिर्मयाह 29 उसका 11वां वचन कहता है God has a good plan for you, कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, for a good future, आपके अच्छे भविष्य के लिए for a good hope, और आपके अच्छी आशा के लिए, and He has a purpose in your life. और उसके पास आपके लिए एक मकसद है। God saved the entire world through one man, Jesus. और परमेश्वर ने सारे संसार को बचाया केवल एक मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह, through His death and resurrection. और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। Because of one man, Thomas, और एक मनुष्य थोमा के कारण India was able to get the gospel. और भारत जो है वो सुसमाचार को सुन पाया। Even when there was no mobile, no technology, और उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, न कोई मोबाइल था, no planes, no mics, no speakers. और ऐसे कोई भी हवाई जहाज, कोई स्पीकर नहीं था, कुछ माइक नहीं था तब। If Jesus is with you, अगर यीशु मसीह आपके साथ है, you are more powerful, impactful, तो हम जो है बहुत सामर्थ्यशील हो जाते हैं, प्रभावशील हो जाते हैं than any negative forces. तो कोई भी नकारात्मक जो भी चीजें हैं उनसे अधिक। You are important to the church. आप जो है कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण हो, You are important to your family.
आपके परिवार के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण हो, You are important to the world around you. और इस संसार भर के लिए आप जरूरी या महत्वपूर्ण हो, You can be a great blessing to your world around you. तो आप जो है इस संसार भर के लिए एक बड़े आशीष का कारण बन सकते हो। And wherever you go, और जहाँ कहीं भी आप जाते हो, surrender to God परमेश्वर को समर्पित करो and ask Him to use you. और उसे कहो कि मेरा इस्तेमाल करो। And when God tells you to do something, और जब परमेश्वर आपसे कहता है कुछ करने को, do it. तो आप करो। Now the fourth thing that you need for your spiritual journey और ये चौथी बात जिसकी हमें आवश्यकता है इस आत्मिक यात्रा में, वो है, is R for run. और जिस आर है जिससे हम कहेंगे दौड़ना। Running talks about speed. और जब हम दौड़ते हैं तो हम गति के बारे में या तेजी के बारे में कहते हैं। Well, there could be a lot of reasons. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। I have my family, मेरा परिवार है, I have my job, मेरी नौकरी है, and so many problems. और बहुत सारी समस्याएं हैं। While you can also say, और आप ऐसा भी कह सकते हो, God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। But the question is, लेकिन सवाल ये है, does your speed justify the pace at which you are running? और आप जिस गति से दौड़ रहे हो, क्या उससे हम कह सकते हैं कि वो सही है या नहीं? It is said, और ऐसा कहा गया है, there is some scope for improvement always. और ऐसा कहा गया है कि हमेशा जो है हम जो है और अच्छा या और अच्छे सुधर सकते हैं। So the question is, और सवाल ये है, can you do better? क्या हम और अच्छा कर सकते हैं? What are the things that you can do better? और वो कौन सी चीजें हैं जो हम अच्छी कर सकते हैं? Or what are the things you can do more? या कौन सी ऐसी बातें हैं या चीजें हैं जो हम और कर सकते हैं? The best optimum speed और जो सबसे अच्छी जो है गति होती है या तेजी होती can है, give desired result और वो जो है सही नतीजे को ले आएगी, within best time frame. तो वो तब होगा जब आपका समय सही होगा। Can you be a better person? क्या हम एक अच्छे व्यक्ति या इंसान बन सकते हैं? So whatever the purpose, और जो कुछ भी मकसद या लक्ष्य हो, the dream or vision, और जो हमारा दर्शन है या स्वप्न है, that should make you run. उसको करने के लिए हमें दौड़ना है। The fifth thing that you need for your spiritual journey और जो पांचवी बात जिसकी आपको आवश्यकता है इस Is- आत्मिक दौड़ में, is that you need to know तो आपको ये जानना है, the narrative of your purpose in life. तो हमारे जो जीवन का जो मकसद है उसको जानना है हमें। Even at the age of 12, और 12 वर्ष की उम्र में Jesus could ask Mary, और यीशु जो है मरियम से पूछ सकता था, don't you know that I am supposed to be around my father's business? और उसे कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि मुझे जो है अपने पिता के कार्य में या व्यवसाय में लगना है? He knew very clearly और वो अच्छी तरह से जानता था that he had to die and rise again. कि उसे मरना है और फिर जी उठना है। He knew that it was going to be difficult, और वो जानता था कि ये मुश्किल होगा, and so he prayed to God. और इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। But he has such a great clarity about what he has been called for. लेकिन वो उसको अच्छी तरह से मालूम था किस कारण जो है उसे बुलाया गया है। Do you have a purpose of God in your life? क्या हमारे पास जो है परमेश्वर का मकसद है हमारे जीवन में? Romans chapter 4 verse 21 says और रोमियो का 4 उसका 21 वचन कहता है that Abraham knew कि अब्राहम जानता था that God was able to perform what he had promised. तो परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा जिसका उसने वादा किया। Ask for a vision from God और परमेश्वर से एक दर्शन के लिए आप मांगो and just go for it. और उसके पीछे दौड़ो। God can put the entire world upside down, और परमेश्वर जो है पूरे संसार को उथल पुथल या ऊपर नीचे कर सकता है for that one man उस एक व्यक्ति के लिए who has a heart to please God
जिसके पास ऐसा हृदय है कि वो परमेश्वर को खुश कर सके and to do what God wants. और ऐसा करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है। The sixth thing that you need for your spiritual और journey ये छठी बात जिसकी आपको आवश्यकता है इस आत्मिक यात्रा में, is that you need to have end in mind. और आपको जो है ई यानी कि अंत को सामने ध्यान में रखना है। This life is not forever. और जीवन जो इस पृथ्वी पर है वो This हमेशा earth नहीं is also रहेगा, not forever. और ये पृथ्वी भी हमेशा के लिए नहीं है। And whatever we want to do in this life on earth, और जो कुछ भी हम इस जीवन में करना चाहते हैं पृथ्वी पर, whether for the people we love so much उनके लिए जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं or God, या परमेश्वर के लिए, we have only one life given by God. तो हमारे पास केवल एक जीवन है जो हमें परमेश्वर ने दिया है। So do your best now. तो इसलिए हमें जो है सबसे अच्छा या उत्तम अभी करना है, Especially to the young men, और खास करके जवान लोगों के लिए, young people, जो युवा हैं। the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, in the days of your youth serve the Lord. और हमारे जो युवा के दिनों में जो है हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, Because that's the time when we have most of our vigor and strength. तो वही समय होता है जब हमारे पास अच्छी सेहत या अच्छी ताकत होती है। 1 Peter chapter 4 verse 7 says, और 1 पत्रस 4 उसका 7वां वचन कहता है, the end of all things is at hand. जो अंत का समय जो है निकट आया है, Therefore be serious and watchful in your prayers. और इसलिए जो है हमें गंभीर रहना है और हमें ध्यान रखना है, प्रार्थना करनी है। So begin on time so that you can end on time. तो इसलिए हमें समय पर शुरुआत करनी है ताकि हम समय पर अंत कर सके। Again I will say, so begin on time so that you can end on time. और इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि सही समय पर शुरुआत करो ताकि अंत भी सही समय पर हो। Keep your life on check so that you always correct mistakes. और हमें अपने जीवन पर ध्यान देना है ताकि जो है हमसे जो भी गलतियाँ होती है उसको हम सुधार सके, And so that you reach where you want to reach. और ताकि हम पहुँच सके वहाँ पर जहाँ हम जाना चाहते हैं। The more closer you are to your destination, और जहाँ हमें पहुँचना है उस स्थान पर अगर हम उसके निकट हैं the more painful it becomes. तो वो बहुत और मुश्किल हो जाता है, दर्दनाक हो जाता है। But when we bear pain and persevere लेकिन जब हम उस दर्द का सामना करते हैं और And do- धीरज रखते हैं and do what's required, और जो हमें करना है उसको करते हैं, God is always faithful to reward तो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है हमें वो इनाम देने के लिए and make us successful. और हमें सफल करने के लिए। Jesus bore the pain in the garden और यीशु मसीह ने उस बगीचे में दर्द को सहा, and the cross उस क्रूस पर, and rose up on the third day. और तीसरे दिन वो जी उठा। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 and 25 says, और 1 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 24 और 25 वचन कहता है, Don't you know क्या आप नहीं जानते that those who run the race कि जो उस दौड़ को दौड़ते हैं, all run, सब दौड़ते हैं, but only one gets the prize? लेकिन केवल एक ही को जो है इनाम मिलता है। Run in such a way और हमें इस प्रकार से दौड़ना है that you get a prize. कि हमें जो है इनाम मिल सके। And everyone who competes in a race और हर कोई जो उस दौड़ में भाग लेता है is disciplined in all areas. तो वो जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है डिसिप्लिन हो जाता है या ताड़ना करता है। Now they do it for perishable crown, और वो ऐसे क्यों करते हैं ताकि उनको ऐसा एक मुकुट मिले जिसका नाश हो सकता है, but we for imperishable crown. लेकिन हम उसके लिए दौड़ेंगे जो उस मुकुट के लिए जिसका कभी नाश नहीं होगा। Now the last, that is the seventh thing और जो 7वीं बात या आखिरी बात ये है, you need in your spiritual journey हमें जिसकी आवश्यकता है इस आत्मिक यात्रा में, is that in the end कि अंत में you should be able to say, कि
कि हम ये कहना चाहिए, why for yes I've done it. और why यानी कि हाँ मैंने ये हासिल कर लिया। But this will be possible only और ये मुमकिन तभी होगा, if we have done our best, ये मुमकिन तभी होगा जब हमने अपना सब कुछ उत्तम किया है and made right choices. और सही चुनाव किए हैं। 1 Corinthians chapter 9 verse 25 says, और 1 कोरिन्थियन 9 उसका 24वां वचन कहता है, and everyone who competes in a race और हर कोई जो उस दौड़ में भाग लेता है is temperate in all things. तो वो जो है सब चीजों में जो है सही सब चीजों का ध्यान रखता है। Now they do it for the perishable crown, और वो करते हैं ऐसे मुकुट के लिए जो नाश हो सकता है। now they do it for perishable crown, और वो उसके लिए करते हैं ऐसे मुकुट के लिए, ऐसे इनाम के लिए जिसका नाश हो सकता है। but we for imperishable crown. लेकिन हम उसके लिए जिसका कभी नाश नहीं होगा। Hebrews chapter 10 verse 36 says, और हिब्रानियों का 10 उसका 36वां वचन कहता है, for you have need of endurance, और हमें जो है धीरज की आवश्यकता है, चीजों की सामना करने की आवश्यकता, so that after you have done the will of God, ताकि जब हमने परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा किया है you may receive the promise. तो हम उस वादे को पा सके। So irrespective of what prize we get, और ये कोई मायने नहीं हमें कोई भी इनाम क्यों ना मिले, what reward, what crown, और जो कुछ भी इनाम या जो कोई भी मुकुट हो, but what a joy it will be to say और कितनी आनंद की बात होगी ऐसा कहना to Jesus यीशु से, that my Jesus, this crown is for you. और यीशु से ऐसा कहना कि मेरे यीशु ये ताज या ये मुकुट तो आपके लिए है। What a joy it will be to say, और कितनी आनंद की बात होगी ऐसा कहना, only by your grace, Lord, केवल आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु, but yes, लेकिन हाँ I have done it. मैंने कर दिया। Yeah, so this is 7 essentials of a spiritual journey. और ये 7 ऐसी जरूरी बातें हैं हमारी आत्मिक यात्रा के लिए। I would like to revise again. और मैं एक बार फिर इसे दोहराना चाहूंगा। So the first thing that you need is J for Jesus. और पहली बात जिसकी हमें आवश्यकता है वो J यानी J for Jesus यानी यीशु। And second thing you need to know is that और दूसरी बात जिसकी हमें आवश्यकता है O for others are important and it is our journey. और कि O यानी कि दूसरे भी महत्वपूर्ण है हमारी इस आत्मिक यात्रा में। Third thing you need to know is that you are important. और तीसरी बात ये है कि आप खुद जो है वो महत्वपूर्ण हो या आप स्वयं महत्वपूर्ण हो। And fourth thing is that you need to know you have to R for run. और चौथी बात ये है कि दौड़, R यानी कि दौड़, हमारी दौड़ को हमें जानना है। Fifth thing you need to know is N for narrative of your life. और पांचवी बात जिसकी हमें आवश्यकता है वो N यानी कि हमारे जीवन का जो कथा का जो लक्ष्य है या मकसद वो हमें जानना है। Sixth thing you need to know is that you need to have E for end in mind. और छठी बात जो जिसकी आवश्यकता है कि हमें जो है क्या अंत है वो ध्यान में रखना है। And seventh thing is that you should be able to say why for yes I have done it. और सातवीं बात आपको यह कहनी है कि हाँ सही है मैंने ये पूरा कर लिया। Thank you so much. God bless you. धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। Now if you would like to ask Jesus to come in your life, और अगर आप यीशु मसीह को आपके जीवन में बुलाना चाहते हैं and start journey with him, और आपकी जीवन की यात्रा उसके साथ शुरू करना चाहते हैं, you can do this prayer after me. तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु, I'm sorry for all my sins. मैं अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। Thank you for dying on the cross. और धन्यवाद
कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। Please be a part of my life. आइए और मेरे जीवन का भाग बन जाइए। We would like to end this time with a prayer. हम इस समय की समाप्ति एक प्रार्थना के साथ करेंगे। Lord, we ask for your protection प्रभु, हम आपकी सुरक्षितता के लिए मांगते हैं, and guidance this week. आपका मार्गदर्शन इस सप्ताह भर के लिए। May the grace of our Lord Jesus, प्रभु यीशु का अनुग्रह, the love of God the Father, पिता का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और सहभागिता पवित्र आत्मा की be with you all. Amen. आप सभी के साथ हो। आमीन।